everyone, my name is Pratyusha and a very warm welcome to our YouTube channel National Skills Network. We are really happy to share the latest edition of our weekly news bites with you all. We as a team put in a lot of time and effort to study all the relevant updates related to the evolving work integrated education system in India so that we share only the relevant ones with you. So now, without much delay, let's jump into the next segment where you all will get to know about all the highlights of this week. And later, I will give the rest of the information, rest of the updates in Hindi as usual. So without much delay, let's get started with today's video. But before we move forward, we would like to remind you that if you haven't subscribed to our YouTube channel yet, then do subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon next to it so that you don't miss any updates from us. So now let's quickly get into the next segment and see what are all the highlights. In case you have been following news and updates in the technical and vocational education segment, I'm sure you would have come across a news regarding ITIs in Maharashtra, where many students who have scored very high in their 10th class exams have voluntarily taken up ITI courses. The fact that they have opted for ITI courses in spite of scoring high is quite a surprising thing for the mainstream media, and that's how the news gets reported. The surprise is obviously because such students are expected to go for engineering and other courses. But you see, if they have taken up something like an ITI course by choice, this is definitely going to set a new trend in the country, and I really hope many other students make such informed choices if it comes close to their career goals. And another important development which I see, and also a trend that's emerging, which I would like to share here today, is the job oriented courses at the degree level. We see many undergraduate colleges today coming up with innovative programs to offer job oriented courses, and this ties up very well with new education policy. I'm so glad to see that in my own state there are many initiatives coming up, and recently I was reading about Nizam College in Hyderabad and a college in Karimnagar offering a BBA program in partnership with the Retail Sector Skill Council. So these are all trends which are showing us that there is a huge potential for these courses. It's not just the potential, but there is a gradual awareness which is increasing among people, among various stakeholders, that job oriented education is the future of India. तो ये थे इस हफ्ते के सारे हाइलाइट्स। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस हफ्ते और क्या क्या हुआ है हमारे इंडिया के स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल एजुकेशन एंड वर्क इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड ड्रोन इंडस्ट्री में। तो चलिए अब जानते हैं इस हफ्ते के सारे अपडेट्स के बारे में। सरकारी कौशल विकास परियोजना अप्रेंटिसशिप समाचार 25 जुलाई 2023। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस हफ्ते सरकार उद्योग अकेडमी में क्या क्या हुआ है। गोवा में 9000 से भी अधिक उम्मीदवारों को मुख्यमंत्री की प्रशिक्षित नीति के तहत अनुबंध पत्र जारी किया गया है, जो कि नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन प्रोग्राम के साथ अलाइंड है। मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक भारत भर के कई शैक्षणिक संस्थानों में सेमीकंडक्टर उपकरणों को व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ावा देकर भारत में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। रिटेलर्स एसोसिएशन स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया ने छात्र कौशल विकास पहल पर जानकारी साझा करने के लिए तेलंगाना विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के 3 नए सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए 119.57 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। तो चलिए अब जानते हैं ड्रोन इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ अपडेट्स के बारे में।
ड्रोन इंडस्ट्री में इस हफ्ते डीजीसीए एंड यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी EASA ने लाइसेंसिंग, ट्रेनिंग, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटीएम सर्विसेज को कवर करने वाले ड्रोन मानकों को विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आंध्र प्रदेश सरकार वायबिलिटी बढ़ाने और कल्टीवेशन कॉस्ट को कम करने के उद्देश्य से कृषि क्षेत्र में ड्रोन को अपनाने के लिए सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। ड्रोगो ड्रोन्स ने कृषि 2.0 का अनावरण किया है, जो कि एक एग्रीकल्चरल UAV ड्रोन है जो आधुनिक कृषि चुनौतियों का समाधान करने और किसानों को सटीक कृषि के लिए एक भरोसेमंद और कुशल समाधान प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये थे इस हफ्ते के ड्रोन इंडस्ट्री से एंड स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल एजुकेशन एंड वर्क इंटीग्रेटेड एजुकेशन से रिलेटेड कुछ हाइलाइट्स। हमारे वेबसाइट पर आपको इस हफ्ते के न्यूज बाइट्स की वेब वर्जन मिल जाएगा, जहां पर कि आपको और भी बहुत सारे क्रूशियल अपडेट्स मिल जाएंगे। और अगर आपको ड्रोन इंडस्ट्री से रिलेटेड अपडेट्स के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे इनिशिएटिव है जो कि ड्रोन इन्फ्लुएंस नामक एक वेबसाइट हमने लॉन्च किया है, जहां पर कि हम ड्रोन इंडस्ट्री से रिलेटेड सारे अपडेट्स रेगुलरली प्रोवाइड करते रहते हैं। तो आप हमारे ड्रोन फ्लुएंस वेबसाइट को चेक करना मत भूलिएगा। और आपको ड्रोन इंडस्ट्री के बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानना है और हमेशा अपडेटेड रहना है तो आप हमें हमारे ड्रोन फ्लुएंस के यूट्यूब चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप ड्रोन फ्लुएंस के लिंक्डइन पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, ये थे इस हफ्ते के सारे अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए, हम आपसे मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और अपने स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देते रहिएगा।